variance and standard deviation today. So in mean deviation about mean, what we can observe is in all the formulas we have used the absolute value, right? But as you can see, we are using modulus in all the formulas. So if you want to operate anything, like if you have to do something or using this data, mean deviation about mean, so since absolute value is considered here, you cannot uh, use this as for further simplification, क्योंकि मॉड्यूलस आ गया है। अब हम लोग इसके साथ अगर मुझे और कुछ करने हैं बाकी मैथमेटिकल ऑपरेशंस तो हम वो नहीं कर पाएंगे। So what we do is we try and replace this modulus. That means the deviations say we will want them to be positive, but instead of modulus, we would want कि वो positive तो आ जाए but हम modulus भी use नहीं करें, so that हम कुछ और mathematical operations भी इस data पर apply कर सकें. So can you tell me how can you have the deviation data or the deviations to be positive? जो आप निकालते हो xi minus x bar, it comes out to be negative. So when you want it to be positive, but then you do not want to find the modulus value, you do not want to use the absolute value, what can you do? How can you make the deviations positive without using the modulus? Yes, Anuvanshika. And we can square it. Very good. So the variance is nothing but it gives you the deviations जो हमारे पास डेटा का आता है उसी का स्क्वायर हम ले लेते हैं, that is called the variance. So variance का एक फॉर्मूला होता है, that is we represent it by sigma square. We call this symbol as sigma square बोलते हैं इसको. It is given by, आप देखो सब कुछ सेम है, it is mean deviation about mean, exactly same है, xi minus x bar, this is your deviation, but instead of modulus we have considered their square, मतलब उसका square कर दिया, so you will have a positive deviations and divide कर दिया total number of observations से. So this variance formula is same as mean deviation about mean, where you have replaced the modulus sign with square. And also standard deviation is nothing but it is the root of this value. So let's see one video to understand it better. What do we understand by standard deviation and what do we understand by variance also? The standard deviation by hand, as there are tons of applications that do it for you. However, it's crucial to understand what exactly this term means and, why we care about it. To understand what the standard deviation tells us, think about a huge room in which 1. On the left side, there are all of the male members of your family, father, grandfathers, cousins, and so on. 2. On the right side, there are all of the female members of your family. For each side, we'll only measure one thing, the average length of their hair. If you have a, let's say, standard Western family, a quick unscientific look will probably reveal that most men have short hair, whereas when it comes to the women, there's a lot of variation, from very short to very long hair. A statistics enthusiast will quickly tell you that the male group has a low standard deviation. In other words, that more of the guys have hair lengths close to the average than with the female group. Next, we'll get scientific by 1, calculating the average hair size for the male as well as female group. In other words, the mean. 2. Subtracting the mean from each individual value, then multiplying the result by itself. In other words, squaring it. 3. We once again calculate the mean, but this time the mean for the previously calculated square differences, and that mean is called the variance. Please note that we divide the sum by the total number of values if the people in question represent the entire group, or if only a sample is picked randomly, we divide by the number of values minus 1. 4. We calculate the square root of that variance, and there we have it. That's the standard deviation. The bottom line is this. Whether you choose to calculate the standard deviation or not, the most important thing is realizing that its role is helping you better understand the nature of your data by knowing how close to the average individual values tend to be. So, by this example, उन्होंने ये बताया है कि अगर आपके पास ग्रुप ऑफ मेन है एंड विमेन है तो उनका जो आप
हेयर देख रहे हैं तो उसमें वेरिएशन ज़्यादा किस में थे, विमेन के डेटा में थे. सो लेट्स सी अनदर एग्जांपल, हाउ कैन वी कैलकुलेट वेरिएंस. वही जो हमने अभी फॉर्मूला देखा है उसी के हेल्प से ये कैलकुलेट करके दिखाएंगे विद अनदर एग्जांपल. To use an example involving the number of vegetables 5 of our friends have in their fridges. They have 2, 3, 4, 7, and 9 vegetables. To calculate the standard deviation, the first step is to calculate the mean of the data set, denoted by x with a line over it, also called x bar. In this case, the mean would be 2 plus 3 plus 4 plus 7 plus 9 divided by 5, which equals 5. Our average friend has 5 vegetables in their fridge. The second step is to subtract the mean from each data point to find the differences. It's helpful to use a table like this. 2 minus 5 equals negative 3, 3 minus 5 equals negative 2, 4 minus 5 equals negative 1, 7 minus 5 equals 2, and 9 minus 5 equals 4. The third step is to square each difference. This makes all the differences positive so they don't cancel each other out. And it also magnifies larger differences and minimizes smaller differences. Negative 3 squared equals 9, negative 2 squared equals 4, negative 1 squared equals 1, 2 squared equals 4, and 4 squared equals 16. The fourth step is to calculate the mean of the squared differences. 9 plus 4 plus 1 plus 4 plus 16 divided by 5 equals 6.8. The final step is to take the square root. This counteracts the squaring we did earlier and allows the standard deviation to be expressed in the original units. The square root of 6.8 is about 2.6, and that's the standard deviation. We're done. The mean number of vegetables is 5 with a standard deviation of 2.6 veggies. Knowing that about 2/3 of the data fall within one standard, assuming the data is normally distributed, we can say that about 2/3 of our friends have between 2.4 and 7.6 vegetables in their fridges. To recap, these are the 5 steps for calculating standard deviation. Calculate the mean, subtract the mean from each data point, square each difference, calculate the mean of the squared differences, and take the square root. Right? So the formula that we have seen, आपने उसी का एक एग्जाम्पल भी देख लिया है. तो हम ये डेटाज में कैसे यूज कर सकते हैं. तो मैथ्स में हम क्या करते हैं, वी यूज जस्ट दी सिंपल फॉर्मूला टू इवैल्यूएट इट. मैंने आपको बता दिया फॉर्मूला कैसे यूज करना है. बाकी फिर इकोनॉमिक्स में आप इसके बहुत सारे यूजेस देखते हैं, वेयर यू विल बी गिवन एनी वर्ड प्रॉब्लम, और उसमें फिर आप पूरा कलेक्ट करके एंड देन यू फाइंड आउट दी व्हाट इज द डिविएशन इन द डेटा. So this is your variance and standard deviation. So we are going to do few questions based on these two formula first. There are other formulas for variance and standard deviations जो आपने और भी किए होंगे, वो भी हम देखेंगे आज की क्लास में. So let's first start with this. I think this is clear. Shall we do Yes, some questions? Yes. Okay. Let's start. So this is an ungrouped data given to you. You have to find the variance of this data. So to find the variance of the given data, so variance का formula हम पहले लिख लेंगे. It is given by sigma xi minus x bar whole square upon n. So we need x bar. So let's try and find out the mean of the data first. Since it is an ungrouped data, let's write the observations. 6, 8, 10. You can use the calculators if you want. So or add them simply, आप लोग ऐसे भी कर सकते हो. So if you add all the observations, tell me the sum. कर लो आराम से. 6, 14, 20, 24, 26, 34, 40. Is it 300? 4. I'm just checking. एक बार करती हूँ.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 150. 12. Yes, ma'am. 150. Yes, ma'am. Okay, so this is the sum of all observations. So we need to find out the mean. So how do we find out the mean? Let's find out. Mean will be given by sum of all observation upon total number of observations. So 150 upon total number of observations. कितने हैं? We have 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10. 10 observations. So divide by it. So the mean is coming out to be 15, right? Okay, once we have the mean, now what we are going to do is we are going to find out the deviations from the mean. So xi minus x bar we are going to find. 6 minus 15 is minus 9. Okay, 6 minus 15 is minus 9. 8 minus 15 is minus 7, right? 10 minus 15 minus 5. 12 minus 15 minus 3 minus 1. ओके इफ यू सी द डेटा आप देख सकते हो डिविएशंस जो आए हैं ऊपर नेगेटिव है नीचे पॉजिटिव है और आप इनको ऐड करते इसका आप निकालते वेरिएंस तो ऑब्वियसली ये कैंसिल आउट कर जाते राइट सो दैट इज व्हाई वी वांट देम टू बी स्क्वायर्ड तो अब आप सबको स्क्वायर कर लो इन सारे डेविएशंस को स्क्वायर कर लो द नेक्स्ट कॉलम विल बी xi minus x bar whole square and now we need the sum of this data. So find out the sum. Just add इन दोनों इन सबको ऐड कर लो और उसका ट्वाइस कर लो बिकॉज वही सारी सेम वैल्यूज नीचे हैं कितना है सम 160 okay others also please check are you getting 160 here 160 कैसे आएगा 330 हाँ आपने इसको डबल भी करना है ना और 160 नहीं होगा अनुवंशिका चेक करो सिर्फ ऊपर Ma'am, I was not the one who said 160. ओके जिसने भी कहा था ओके निष्ठा 165. हाँ And 165. I was saying for the upper half only. सिर्फ इतना Ma'am, पार्ट because जितना मैंने बोला है तो Yes, दैट ma'am. आई थिंक 165 और फिर उसका डबल करना है बिकॉज Yes, नीचे ma'am. भी वही सेम वैल्यूज हैं ओके सो यू गेटिंग Yes, ma'am. 330 Yes, ma'am. okay this is your sum of these observations so we want to find out the variance so now here the variance will be given by sum of all observations upon total number of observations so sum is 330 upon total number of variations is 15 so just divide it 22 ठीक है मैंने Yes. Isn't it 10? And 5, the 6 total number of observations. Yes, ma'am. N is equal to Yes, N ma'am. is 10. oh 10 मैंने 16 लिख दिया sorry yes so ये तो 33 आ रहा है सीधा ही you're getting 33 Yes, ma'am. Yes, ma'am. right so इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ वेरिएंस बोला था so this will be your answer अगर स्टैंडर्ड डिविएशन पूछते बाय चांस अगर स्टैंडर्ड डिविएशन यहाँ पर पूछा होता so you would have taken the root of this तो स्टैंडर्ड डिविएशन क्या करता है जो हमने स्क्वायर्स किए थे उनको फिर अब ओरिजिनल फॉर्म में ले आएगा हमारी वैल्यूज जो होंगी वो ओरिजिनल यूनिट्स में ही आ जाएंगी तो ये हमारा डिस्क्रिप्टिव मेथड मतलब थियोरेटिकल अगर थ्योरी में बात करें तो हम वेरिएंस यूज करते हैं बट अगर हमें एक्चुअल लाइफ में हमें यूज करना होगा तो हम स्टैंडर्ड डिविएशन यूज करते हैं क्योंकि डेटा का
हम लोग बहुत ज़्यादा लार्जर वैल्यूज़ नहीं लेना चाहते हैं, तो हम फिर उनको स्क्वायर रूट ले लेते हैं. सो वी टेक दी standard deviation whenever we talk about the deviations, right? So this was for ungrouped data. Let's look at for group data also, variance and standard deviation. The data is given to you, discrete frequency data. Let's find out the variance and standard deviation. Karo is. Excuse me, ma'am. Yes. Ma'am, do we need to find out the root also for standard deviation? Yes, Let's you will simplify. have to find out up to 2 decimal places. You have to find out the root also. ठीक है? Okay, ma'am. Standard deviation. Chalo, do this one. So your data is 4, 8, 11, 17, 20, 24, 32. These are your observations. Frequencies are also given to you. These are our frequencies. Now you need, first thing you need is to find out the variance. You need Ma'am, the mean. mean. Right, because it is discrete frequency distribution. To find out the mean will be given by sigma fi xi upon sigma fi. So we need these values. ये आपने मुझे अभी बताया था formula. So let's find out the column for sigma fi xi. So xi into fi. Let's multiply 12. I think you are getting these values. आप लोग check कर ले, कोई mistake नहीं होनी चाहिए. If these values are correct, add them. We need the sum. 420. 4. Okay. So this is sigma fi xi. So to find out the mean, we'll have 420 upon sigma fi. So let's also calculate sum of all frequencies. So this is 8, 17, 22, 26, 27, 30. Right? Yes, ma'am. So mean is coming out to be 4. Is that correct? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so we have got the mean. The next step is to calculate now is the deviations, right? तो deviations निकालेंगे, क्या हो जाएगा? xi minus x bar. So सब में से हम लोग subtract कर देंगे अपना mean with 14. लिख लेते हैं. So calculate this. पूरा column आप बनाओ. What are you getting? -10, -6, -3, 6, 10, and 18. Right. So minus 10. This is minus 10. Minus 6, minus 3, 3, 6, 10, and 18. So these are our deviations. Now we want to square them up.
तो इनको स्क्वायर करेंगे नेक्स्ट कॉलम में. सो दिस इज 100. सो ये आपके पास डेटा आ गया, राइट? But here you can see because it is discrete frequency data, so just like हम absolute data के केस में भी करते थे, हम उनको frequency से multiply करते थे, यहाँ पर भी क्या करेंगे? We'll have one column where we're going to take fi into xi minus x bar whole square. So we need to multiply it with frequency. So this data will be multiplied with this. करते हैं इसको. This is 300. एक बार चेक कर लो ये वैल्यूज. आर यू ऑल गेटिंग दिस? fi into xi minus x bar whole square. Yes, ma'am. 1374. Yes, ma'am. Right. So we wanted the variance. So variance will be given by sigma fi into xi minus x bar whole square upon sigma fi. So जो हमारा mean deviation about mean for discrete frequency data होता था, वही यहाँ पर है, only modulus is replaced with square. Now we can substitute the values. So this is 1374 divided by 30. So आप इसको calculate करेंगे. 45.8. 12, huh? 45.8. Yes, ma'am. Right. So this is your variance. And also in this case, they have asked for standard deviation. So you'll have to take the root of this. तो इसका root भी करना है. करो और बताओ कितना आ रहा है. So it will be approximately 6 point something, क्योंकि 6 6 36 होता है ना? And 7 7 49. 49 तो exceed कर देगा इसको. So obviously 6 point something आएगा. कितना आ रहा है? 6.8. राइट 6.77 समथिंग, या फिर आप 6.8 बोल सकते हो. 6.77 is the answer. राइट. हो गया सबका? Yes, ma'am. Okay. Let's see for this data. The question is calculate the mean, variance and standard deviation for this given data. And you can see this is a continuous frequency distribution. अब यहाँ पर एक चीज देखो, जब हम लोग इस क्वेश्चन में वेरिएंस निकाल रहे थे तो हमारे जो नंबर्स थे वो कितने बड़े हो गए थे. दैट इज 100, 36, 9, है ना, फ्रीक्वेंसी से जब मल्टीप्लाई करते हैं. सो अगर कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डेटा हम देखते हैं उसमें तो हमारी ऑब्जर्वेशन वैसे ही बहुत बड़ी होती है, बिकॉज यू कैन सी 30 to 40. सो इसके बीच का जो नंबर आएगा दैट विल बी 35. तो ऑब्जर्वेशन विल बी 35, 45, 55 ऐसी होंगी. सो कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी अगर हम मीन निकालेंगे और वेरिएंस निकालेंगे इस डेटा से. So what we do is we use assume mean method to find mean here. Now what is assume mean? There is a simple formula to lower down the values of your observations. आपकी जो calculation है उनको simplify करने के लिए formula है, वो मैं आपको बताती हूँ अभी क्या क्या formula है, और उसको use करके हम लोग फिर यहाँ पर mean find out करते हैं. So the formula for assume mean method is, आप लोगों ने किया होगा इको में, किसी को याद है? Anybody? Ma'am, it is summation. Yes? बोलो क्या बोल रहे थे?
It is A plus sigma fi di upon sigma fi बोल सकते हो into h. This is the formula to calculate the mean using assume mean method formula. उसमें हम क्या करते हैं, हम अपने आप एक मीन अज्यूम कर लेंगे, उसको हम a बोलते हैं, फिर हम डिविएशंस निकालते हैं, और ये आप देख रहे हो ये वही है, ये मीन ऑफ द डिविएशंस आपने निकाल दिया और फिर उसको विड्थ से मल्टीप्लाई कर देते हैं. मैं आपको बताती हूँ डिविएशंस कैसे निकालते हैं इसमें. सो लेट्स फर्स्ट राइट डाउन दिस डेटा इन टैबुलर फॉर्म. तो ये आपके क्लास इंटरवल्स हैं. So these are your intervals. ये हमारी frequencies हैं 7, 12, 15, 8, 3, 2. And since we need the observation, तो हम सबसे पहले observations निकाल लेते हैं. Right? ये ऑब्जर्वेशंस है. अब देखो यहाँ पर अगर आप मीन डायरेक्टली कैलकुलेट करना चाहोगे, ऑब्वियसली आप कर सकते हो. अगर एफ आई सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई करना चाहते हो आप कर लो, बट क्योंकि ऑब्जर्वेशन जब भी इतनी बड़ी हो जाती है, हम स्पेसिफिकली ये मेथड ज़्यादातर तब यूज़ करते हैं व्हेन वी हैव कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, बिकॉज ऑब्जर्वेशंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, तो कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी. बस उसी को छोटा करने के लिए हम ये कर रहे हैं. हम क्या करेंगे, we are going to take a column which we are going to call deviations. That will be xi minus 1 mean, और वो mean जो होगा वो हम assume mean लेकर चलेंगे, हम अपने आप assume कर लेंगे. मतलब इन सारे observations में से जो भी आपको कोई बीच में एक नंबर दिख रहा है उसको आप मीन अज्यूम कर लो. जैसे आप देख रहे हो इसमें ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है, तो अब मैं इसको मीन अज्यूम कर सकती हूँ. या अगर इवन होते तो आप चाहे तो 55 को ले लेते, चाहे तो 65 को ले लेते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका करेक्ट ही आ जाएगा. तो अब हम क्या करेंगे, इससे डिविएशंस निकालेंगे. दैट मीन्स एक्स आई माइनस ए, ये जो मीन अज्यूम किया, अपॉन द विड्थ ऑफ द इंटरवल हम ऑल्सो उससे डिवाइड करेंगे. इससे क्या होता है, क्योंकि ऑब्जर्वेशन से माइनस करेंगे अगर मीन, तो वैल्यूज तो फिर भी बड़ी रहने वाली हैं. जैसे अगर आप करोगे 35 माइनस 65, द वैल्यू इज गोइंग टू बी 30 या माइनस 30. सो माइनस 30 इज स्टिल एक लार्ज ही वैल्यू है कैलकुलेशंस के लिए. तो हम क्या करते हैं, जो भी ये डिविएशंस आएंगे उनको इन विड्थ से भी डिवाइड कर देंगे, सो दैट वो नंबर्स बहुत छोटे हो जाए. तो जैसे अगर मैं यहाँ पर कैलकुलेट करती हूँ तो 35 माइनस 65 इज माइनस 30, एंड माइनस 30 डिवाइड बाई 10 इज गोइंग टू बी माइनस 3, राइट. एंड सिमिलरली दी अदर वैल्यूज, ये माइनस 2, ये माइनस 1, ये 0, 1, 2 एंड 3. अब देखो ये क्या हो गया, आपके पास ये जो डेटा आया है डी आई का, वो इन एक्साइज से कितना छोटा है. तो जब मुझे इस मीन में कैलकुलेट करना होगा तो मैं सिग्मा एफ आई डी आई निकाल रही हूँ. सो द कैलकुलेशन इज मच मोर सिंपलर नाउ, तो हम इजीली कर पाएंगे. सो दैट इज हाउ यू यूज कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डेटा के लिए मीन इन सिंपल वे. यू विल कैलकुलेट द डिविएशंस एंड यू विल यूज दिस फॉर्मूला टू कैलकुलेट द मीन. ठीक है. अगर आपको लगता है ऑब्जर्वेशन इतनी बड़ी नहीं है कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लो सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, दैट विल ऑल्सो वर्क. बट अदरवाइज अगर आपको थोड़ा छोटा करना है कैलकुलेशंस को, देन यू कैन ऑलवेज यूज दिस फॉर्मूला, राइट. ठीक है, करें इसके आगे कैलकुलेशन अब. सो वी नीड, Yes. next column is we need fi into di. So let's multiply this with this. So this is going to be 9 minus 9 minus 14 minus 12 0 8 6 6, right. We are getting this fi into di. So we need the sum of this as in the formula sigma fi di. So let's add them up. So this is 14 and this is 18. 18. So this is minus 15. Yes, ma'am. Okay. So sum of FIDI is coming out to be 15. तो अगर मैं यहाँ पर मीन लिखना चाहूँगी, so assume mean plus
सिग्मा एफ आई डी आई जो हमने निकाल लिया है अपॉन सिग्मा एफ आई भी करेंगे इंटू एच। तो निकालते हैं। A we have taken as 65, then sigma FI DI अभी आया -15 sigma FI, so sigma FI from the given data इनको ऐड करेंगे 10 22 37 yes 50 50. Yes, ma'am. 50 right. So now you divide by 50 into h, तो h था 10, so 65 minus 3, so 62. So this is going to be your mean, whether you calculate it by the formula sigma fi xi upon sigma fi or whether you calculated using this formula, mean दोनों से यही आने वाला है। ठीक है, आप करके भी देख सकते हो। तो this will be your mean। आ गया सबका mean? Yes, ma'am. Okay, so once you have the mean, now the next step is simple। हमें क्या करना है, हमें निकालना है वेरिएंस। सो वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए हम निकालते हैं xi माइनस x बार होल स्क्वायर। तो मीन आ चुका है, सो वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द डेविएशंस एंड देन हम उनको नेक्स्ट कॉलम में स्क्वायर कर देंगे। सो लेट्स डू दैट। xi माइनस x बार इज 62, तो 35 माइनस 62 निकालते जाओ। बताओ मुझे। -27. -27, okay, then next -17. -7. 3. 13. 23. 33. आप लोग कैलकुलेटर यूज कर सकते हो अभी के लिए, ठीक है। एग्जाम में भी ऑब्वियसली कर सकते हो, घर से एग्जाम है आप कर सकते हो, मुझे इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इसके लिए कैलकुलेशंस के लिए इन दिस चैप्टर इफ यू यूज कैलकुलेटर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज अगर आपकी क्विक कैलकुलेशन है तो आप डायरेक्टली कर लो, कैलकुलेटर यूज करने की जरूरत नहीं है। ओके, नाउ लेट्स फाइंड आउट देयर स्क्वायर। सो स्क्वायर कर लेंगे। So this is going to be 729, 49, 289, 49, 9, 169, right, 169. Then 23 square is going to be देख लो यही आ रहा है xi minus x bar whole square, just check। Yes, ma'am. आगे सबके पास ये। So now the next step is to multiply each with the frequency। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, fi into the observations, इसको आप frequency से multiply कर दोगे। तो यहाँ मेरा पेन, ओके, fi into xi minus x bar whole square। So let's multiply this with the frequencies। So multiply करो और बताओ कितना आ रहा है। Ma'am, excuse me, ma'am. Yes, yes, Just asking, ma'am, don't we have any other kind of method for this? Like, we have, it is really lengthy. we have, इसलिए करा रही हूँ मैं आपको ये, क्योंकि लेंदी है तो मैं आपको बताऊंगी अब कि फिर नेक्स्ट हम लोग कौन सा मेथड यूज करते हैं, जो कि आप डायरेक्ट इको में यूज करते हो। बट आपने इको में ये वाला फॉर्मूला नहीं किया होगा, है ना, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ आई, ये आपने नहीं किया होगा इको में। आपने डायरेक्ट मेथड जो यूज किया है वो आपने स्टेप डिविएशन वाला मेथड यूज किया Yes, है। ma'am.
है ना। तो आप जरूर कर लेना एग्जाम में, बट मैथ्स में ये आपको इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि आपको पता चले कि ये ऐसी चीजें कहाँ से आई है। तो मैंने आपको सबसे पहले ये बताया कि वेरिएंस एक्चुअल फॉर्मूला क्या है, एंड द फॉर्मूला दैट यू यूज इन इको वो कहाँ से आया है। आई एम गोइंग टू गिव यू द डेरिवेशन एंड देन यू कैन यूज दैट फॉर्मूला, क्योंकि ये बहुत लेंदी है। जैसे हम देख रहे हैं नंबर्स कितने बड़े हो गए हैं, कैलकुलेशंस बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। तो जो हम मेथड पढ़ेंगे, जो फॉर्मूला पढ़ेंगे, वो कैलकुलेशंस को बहुत शॉर्ट बना देता है। वो करेंगे, अभी इसी के बाद करेंगे। अभी पहले इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। ओके मैम। ओके, सो वी नीड द सम ऑफ दीज। आप ऐड करो, इनको निकालो सम कितना आ रहा है। चाहे तो कैलकुलेटर यूज कर लो अभी के लिए। बताओ कितना आया। 10050. राइट, इट इज 10050। सो मुझे निकालना था वेरिएंस। तो वेरिएंस होता है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ आई। ये सम आपने मुझे बता दिया 10050, और हमारे पास सिग्मा एफ आई 50 है। वेरिएंस इज कमिंग, हम स्टैंडर्ड डिवीजन 01 अप्रोक्सीमेटली समथिंग 14 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। कितना आ रहा है? 14 पॉइंट 14.18। Yes, Yes, ma'am. ठीक है। So you have 14.18 here. So this is your answer. तीन चीजें पूछी थी, मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। सॉरी, मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। सो हियर हमने क्या देखा इस क्वेश्चन में, ये मैंने आपको क्यों कराया। जब भी कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डेटा है, एक तो चीज़ है कि मीन हम डायरेक्ट ना इवैल्यूएट करके, इस फॉर्मूला से अगर इवैल्यूएट करते हैं तो कैलकुलेशन सिंप्लीफाई हो जाती हैं। बट इससे सिर्फ मीन के लिए हमारी कैलकुलेशन सिंप्लीफाई हुई। जब हम वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन कर रहे थे तो हमारे पास ये डायरेक्ट वही चीज़ थी कि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और कैलकुलेशन फिर भी हमारे पास बड़ी थी। तो अब इन कैलकुलेशंस को हम छोटा कर सकते हैं। दैट इज, वी आर गोइंग टू स्टडी अनदर फॉर्मूला फॉर वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। तो ये दो फॉर्मूलाज हैं जो हम यूज़ करने वाले हैं, और ये कैसे आए हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो पहले देख लेते हैं क्या फॉर्मूला है। Variance is given by 1 upon n square, n into sigma I varying from 1 to n fi xi square minus sigma fi xi का whole square. This is one thing, variance. Also, the variance can also be given by this formula, where आप अगर देखोगे, आपने इको में ये वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा, whereas आपने ये yi को रिप्लेस किया होगा वहां पर di से, डिविएशन है ये बेसिकली, और ये फॉर्मूला देखा होगा। यस मैम। यही है, ये हाँ। थोड़ा सा इससे अलग है। मैम थोड़ा Ma'am, the H is not there. यस मैम। H is not there, No, ma'am, it is अंदर there. It is there. Yes. है ना, Yes, ma'am, it is होगा। there. मैम वी राइट Right, एन इनसाइड। you write n inside, right, वो भी किया जा सकता है। So what I'm going to do is I'm going to show you the derivation of this, और exactly उसी से ये भी फॉलो करता है। तो ये फॉर्मूला है हमारे पास, स्टैंडर्ड डिविएशन, इसी का स्क्वायर करोगे तो वेरिएंस आ जाएगा। सो ये फॉर्मूला है हमारे पास वेरिएंस के। अब ये कहाँ से आए हैं, लेट्स सी दिस, जो आप यूज करते हो। तो इसको देखने के लिए सबसे पहले हमें पता है वेरिएंस जो होता है, इट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ आई, राइट। ये होता है वेरिएंस। तो अगर मैं सिंपल अपने कैलकुलेशंस करूं,
जो मैथमेटिकल इवैल्यूएशन है, दैट इज a माइनस बी होल स्क्वायर लिखा है ये, तो इसको ओपन कर सकते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर से. सो लेट्स जस्ट ओपन इट and write this as n. So this is 1 upon n and this is sigma I varying from 1 to n fi, और ये मैं अप्लाई कर रही हूँ a माइनस बी होल स्क्वायर, तो ये हो गया xi स्क्वायर प्लस x बार होल स्क्वायर माइनस 2xi x बार होगा. आप लोग स्टेप देखते जाना, यहाँ पर इसको डेरिवेशन को लिखने की जरूरत नहीं है, आपसे पूछी नहीं जाती है, आप जस्ट यहाँ पर समझ लो. ठीक है, तो मैंने a माइनस बी होल स्क्वायर यहाँ पर अप्लाई कर दिया. दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग. तो अब मैं क्या करती हूँ, मैं इसी को ओपन कर लेती हूँ, fi को इसके अंदर ले जाती हूँ, तो 1 अपॉन n बाहर रहेगा. So if you multiply this sigma fi inside, it will be sigma fi xi square plus sigma I varying from 1 to n fi x bar whole square minus 2 sigma fi xi into x bar. ये चीज होगी. यहां तक सबको क्लियर है? सिर्फ मैंने इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लिया है सबके साथ. सो ऑब्वियसली जहां पर i लिखा है वही डिपेंडेंट है ऑन दिस समेशन, अदरवाइज जो x बार है वो इसके साथ नहीं है, जो x बार है उसको हम सिग्मा fi xi के साथ नहीं लेंगे. अब आपको पता है द मीन इज गिवन बाय सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi, या इसको n भी बोल सकते हो. तो जहां पर भी सिग्मा fi xi है मैं उसको रिप्लेस कर सकती हूँ बाय n इंटू एक्स बार, लिखा जा सकता है. इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया. सो मैं देख सकती हूँ आई हैव सिग्मा fi xi हियर, तो मैं इसको लिख सकती हूँ एज nx बार. लेट्स सब्स्टिट्यूट, इट बिकम्स 1 अपॉन n सिग्मा fi xi स्क्वायर प्लस सिग्मा I varying from 1 to n. This sigma fi can be written as n, right? ये total number of frequencies होती हैं आपके पास, उन्हीं का sum है. So you can write this as n, x bar square already है, and यहाँ पर हम substitute कर रहे हैं इसको as nx bar. तो n x bar और एक x bar पहले ही था, तो this becomes nx bar. तो ये हो गया n sigma fi xi square, और इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, दोनों सेम है. सो माइनस एन एक्स बार स्क्वायर. यहां तक सबको समझ आया है तो देख लो पहले, अगर कोई भी डाउट है किसी भी स्टेप में आप पूछ सकते हो. क्लियर? राइट, बताऊं मैं आगे? यहां तक क्लियर है ना सबको? ओके, सो नाउ व्हाट वी कैन डू इज, ये जो सिग्मा fi xi स्क्वायर है, तो इंस्टेड ऑफ x बार स्क्वायर मैं इसको x बार को रिप्लेस कर दूंगी. व्हाई आई एम डूइंग दिस इज, क्योंकि जो हमारा डेटा होता है उसमें ऑब्जर्वेशंस होती हैं और फ्रीक्वेंसी होती है. तो अगर मैं इस फॉर्मूला को सिर्फ ऑब्जर्वेशन और फ्रीक्वेंसी पर बेस कर दूं तो मुझे मीन भी निकालने की ज़रूरत नहीं है वेरिएंस निकालने के लिए. मैं डायरेक्टली ही ऑब्जर्वेशन और फ्रीक्वेंसी से अपना वेरिएंस कैलकुलेट कर पाऊंगी. तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वी आर रिप्लेसिंग दिस मीन का स्क्वायर बाय सिग्मा fi xi अपॉन n का होल स्क्वायर. तो ये हमने रिप्लेस कर दिया x बार को. x बार इज रिप्लेस्ड बाय आवर मीन फॉर्मूला in terms of frequency and observation. So now you can see that अगर आप इसको स्क्वायर करते हो, चलो मैं यहाँ लिख भी देती हूँ, 1 upon n, this is sigma fi xi square minus n into sigma fi xi whole square upon n square होगा. ठीक है, and now I can take n square out, या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि आप ये n को अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हो और फिर उसके बाद आप सब कुछ बाहर निकाल रहे हो.
तो आप देखो ये आपके पास हो जाएगा n स्क्वायर, आई हैव टेकन आउट n स्क्वायर, तो दिस बिकम्स n सिग्मा fi xi स्क्वायर माइनस सिग्मा fi xi का होल स्क्वायर। Yes, ma'am. राइट, करेक्ट है ये। यहाँ पर आप इस स्टेप में ये भी कर सकते हो, अगर आपको कैलकुलेशन और वो करनी है, ये आप यहाँ पर ब्रैकेट हटा सकते हो, और ये जो मीन स्क्वायर आपने लिया था ये एन एन कैंसिल हो जाएगा, तो आप सीधा ही इसका स्क्वायर यहाँ पर डील कर रहे हो, और ये यहाँ पर ब्रैकेट्स आप रिमूव कर सकते हो, तो यहाँ पर ये बन जाएगा इसका स्क्वायर। तो नाउ व्हेन यू टेक आउट 1/n स्क्वायर बाहर, सो दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग। अब यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है, देखो ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है यहाँ पर, ये एग्जैक्टली यही फॉर्मूला आ गया है ना, ये वाला फॉर्मूला आ गया। तो इससे ही स्टैंडर्ड डिविएशन आता है इसी का रूट करके, तो ऑब्वियसली 1/n स्क्वायर इसका रूट करोगे तो n बन जाएगा, एंड दिस थिंग विल बी इन रूट। नाउ द डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग दिस फॉर्मूला इज अगेन कि हमारी कैलकुलेशन सिंप्लीफाई इतनी नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि हम कर रहे हैं ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर कर रहे हैं, उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अब हम तो कैलकुलेशन सिंप्लीफाई करने के लिए कर रहे थे, बट अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू बड़ी रहेगी, ऑल्सो ये भी हमारे पास टर्म जो होगा वो बड़ा रहेगा। तो हम क्या करते हैं, जो हमारे डिविएशंस होते हैं, जो हमने अस्यूम मीन मेथड में डिविएशंस निकाले थे, instead of using our original observations we use these deviations, and then ये फॉर्मूला कैसे चेंज हो जाता है, क्योंकि डिविएशन वाले फॉर्मूला में आपने देखा था you multiply, you divide, instead of multiplying you divide the observation with the width of the class interval। तो इसको मैनिपुलेट करने के लिए हम इसको यहाँ पर h से मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज वाई इस फॉर्मूला में हमारे पास h यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है। अदरवाइज अगर आप डिविएशंस नहीं लोगे, जैसे कि इस फॉर्मूला में देख रहे हो ऊपर, सो आपके पास कहीं h भी नहीं है, यू आर यूजिंग द ओरिजिनल ऑब्जर्वेशंस। So what we can do is we can try one question using this formula so that आपको दिख जाए कि ये क्यों इतनी बड़ी calculations आ रही हैं, and then next we can apply this formula deviation वाला, and then you can always stick to this, इसी formula पर stick कर सकते हो because ये ही आपको help करेगा to simplify your calculations. Is it clear to everyone? समझ आ गया? Yes, ma'am. Okay, तो हम Ma'am, करके this देख लेते हैं। derivation, Yes. Sorry? ma'am, this derivation, will it be coming in the exam? No, derivation is not going to come in the exam. वो बस आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बता दिया है, ठीक है? So you can directly Okay, use the ma'am. formula. Okay, ma'am. Okay, here find the standard deviation for the following data. तो आप देख सकते हो आपके पास discrete frequency data है। अब आपको यहाँ पर वेरिएंस निकालना है, तो आप क्या कर सकते हो? You can write your observation and frequencies. This is 7, 10, 15, 10, 6. अब लेट्स से मैं पहले ये वाला फॉर्मूला यूज कर रही हूँ फॉर फाइंडिंग आउट द स्टैंडर्ड डिविएशन। आई एम यूजिंग दिस फॉर्मूला जिसमें हम h इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, डिविएशंस नहीं निकाल रहे हैं, तो ये हम यूज करने वाले हैं, ठीक है? n इंटू सिग्मा fi xi स्क्वायर माइनस सिग्मा fi xi का होल स्क्वायर। तो आप देख सकते हो स्टैंडर्ड डिविएशन या वेरिएंस निकालने के लिए वी डू नॉट नीड टू फाइंड आउट मीन एनीवेयर, वी जस्ट नीड ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर इनटू फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी इनटू ऑब्जर्वेशन, फिर उसका होल स्क्वायर कर लेंगे। तो ये जो डेटा रिक्वायर्ड है वो हम यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं। सो लेट्स फाइंड आउट एफ आई इंटू एक्स आई, उसका स्क्वायर चाहिए तो एफ आई इंटू एक्स आई कर रही हूँ, 80। So
So this is your fi into xi. And we need sigma fi xi का square. So आप एक कॉलम बना सकते हो xi square और फिर fi into xi square कर सकते हो. So you multiply. Eighteen square is 324. And this is 529. So fi into xi square. तो अब मल्टीप्लाई करें fi into this. Calculate and tell me. This is what you are getting. आ रहा है? Yes, ma'am. So देखो आप फॉर्मूला में आपको एक तो ये सम चाहिए एंड यू नीड दिस सम, उसका स्क्वायर करेंगे तो ये ऐड कर लेते हैं दोनों को. Six one four. राइट 614 एंड fi into xi स्क्वायर का सम 952. 9652. राइट. Yes, ma'am. So these are the two sums required. Also frequency का भी sum करना है, sigma fi करना है. So that is going to be 848. ये हमारे पास आ रहा है. So to find out the standard deviation, let's substitute the values now. N is 1/48. इधर 48 multiplied है. Sigma fi xi square. तो fi ये है sigma fi और xi square जो हमारे पास सम था वो ये आया था. माइनस fi xi का होल स्क्वायर. So that means 614 का होल स्क्वायर. राइट. तो ये आपका बन गया 0 0 3 86300. हाँ 863 है ना. 86300. ओके सो वी वांट द रूट ऑफ दिस. तो रूट कर लो इसका. रूट ऑफ 86300 293.7 समथिंग आ रहा है. मैंने कैलकुलेटर से किया है. 293.76. 76, right? And divided by then 48. तो 6.12 ये आपके पास आ रहा है आई थिंक. राइट. ठीक है. Yes, ma'am. अब बट यहाँ पर भी देखो हम वही कर रहे हैं, कैलकुलेशंस तो अभी भी लेंदी है. तो अब जो मेथड यूज करने वाले हो वो आप थ्रू आउट यूज कर सकते हो. व्हेन यू सी डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी, व्हेन यू सी कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी, दैट मीन्स जो भी हमने ये फॉर्मूला बताया h वाला डिविएशन वाला,
you can stick to this formula to find out the standard deviation. This will be the easiest formula. आपकी quick calculations होंगी, but you must remember it. Derivation आपने इसकी देख ली है, xi को रिप्लेस करते हैं सिर्फ yi से या di आप लिख सकते हो, एंड क्योंकि ये डिविएशंस हैं उसमें हम h से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं. सो लेट्स सी द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर, और फिर ये आपका चैप्टर खत्म. ओके लेट्स सी, ये क्वेश्चन करेंगे हम. अभी जो हमने डेटा देखा था इसी का निकालते हैं. लेट्स से हम चेक भी कर पाएंगे. लेट्स कंसिडर दिस सेम डेटा. वी हैव टू फाइंड द स्टैंडर्ड डिविएशन फॉर दिस. अभी हमने निकाला था ना इसका स्टैंडर्ड डिविएशन भी. सो यूज दिस डेटा, और इसी को हम करेंगे यूजिंग द फॉर्मूला जो अभी हमने h वाला और डिविएशन वाला देखा है, दैट इज स्टेप डिविएशन वाला हम देखेंगे. सो लेट मी राइट डाउन दिस डेटा इन टैबुलर फॉर्म हियर. सो क्लास है हमारे पास, फ्रीक्वेंसीज हैं 30 to 40, 30 to 50. राइट, ये हमने लिख लिया अपना क्लास, ये हमने लिख लिया अपनी फ्रीक्वेंसीज, एंड यहाँ पर अब हम लिख लेंगे अपने ऑब्जर्वेशंस. अब हमें स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है. हम लोग क्या करने वाले हैं, वी आर यूजिंग द डिविएशन फॉर्मूला टू इवैल्यूएट आवर स्टैंडर्ड डिविएशन, सो दैट ये सारी ऑब्जर्वेशन छोटी हो जाए और पूरी कैलकुलेशन ही छोटी हो जाए. ठीक है, क्या करेंगे, सबसे पहले आप निकालोगे अपने DIs. आप DI लिखो, हम लोग मैथ्स में YI लिखा हुआ है आपकी बुक में, तो मैं YI लिख दूंगी. आपने जो इको में सिंबल किए हुए हैं आप वही सेम यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. So ma'am, can you please write it DI dash? सॉरी, Ma'am, can we write it DI dash? यस यू कैन राइट DI डैश. आप जो Okay, thank सिंबल you, आपने ma'am. वहाँ यूज किए हैं वही सेम यहाँ पर यूज कर सकते हो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मीनिंग उनका सेम ही है. तो यहाँ पर लिखोगे xi माइनस, अब क्योंकि हमने यहाँ पर मीन नहीं निकाला है और डिविएशन में हम मीन लेते हैं तो हम एक अज्यूम मीन लेंगे, इसी का बीच का ऑब्जर्वेशन से आप मीन ले लोगे. तो 65 माइनस xi माइनस 65 अपॉन द विड्थ ऑफ द इंटरवल. तो ये हम डिविएशंस वहाँ पर भी इवैल्यूएट कर चुके थे, इस क्वेश्चन में भी हमने किया था. राइट, तो वही पूरा डेटा लिख दो, -3 -2 1. सो -3 -2 -1 0 1 2 3 आ गए मेरे पास डिविएशंस. अब आपको पता है जो वेरिएंस या स्टैंडर्ड डिविएशन जो आप निकालोगे इज गिवन बाय h अपॉन n रूट ऑफ n इंटू सिग्मा fi इंटू yi स्क्वायर. सेम फॉर्मूला है, ओनली xi रिप्लेस्ड विद yi एंड सिग्मा fi yi का होल स्क्वायर. तो अब मुझे ये डेटा चाहिए. सो लेट्स इवैल्यूएट yi स्क्वायर लेते हैं. अब ये थोड़ा सिंपल हो गया है, -3 का स्क्वायर करना ज़्यादा सिंपल है इंस्टेड ऑफ xi का स्क्वायर करना. तो यहाँ पर हम ये कर रहे हैं. राइट, तो हमें एक कॉलम चाहिए fi इंटू वाई स्क्वायर, एक चाहिए fi yi. तो एक निकाल लेते हैं पहले fi इंटू वाई स्क्वायर. सो आई एम मल्टीप्लाइंग frequency with yi square. So this comes out to be the 27, 28, 12, 0, 8, 4 3s are 12 and 9 2s are 18. इसका सम चाहिए, सम निकाल लेते हैं. 105. fi into yi.
Okay, fi into yi निकालते हैं, that means this into this. So -9, -14, -12, 0, 8, 6, 6. So now add कर लेंगे इनको. -15. Yes, ma'am. बस हमारे पास ये वैल्यूज आ गई हैं. अब हम क्या करेंगे? वी आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट इट इन द फॉर्मूला. सो ये फॉर्मूला है h/n. यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो. So h is 10, n is 50. 50 into अभी निकाला सिग्मा fi yi का स्क्वायर. So that is 105 and minus the square sigma fi, this is -15 whole square. Right, if you take the root of this, कितना आ रहा है? $1.38. हाँ, Sorry, ma'am. Oh, sorry, ma'am. I was doing it the other way. Sorry, ma'am. ये आपके पास इससे स्टैंडर्ड डिविएशन आ जाएगा जो कि सेम है आपने जब लास्ट टाइम देखा था. देखो मैं दिखा देती हूँ आपको. ये आया था आपके पास स्टैंडर्ड डिविएशन यहाँ पर, और अभी हमने इस फॉर्मूला से किया है तो हमें कोई मीन निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमने डायरेक्ट कर लिया. तो ये क्वेश्चन, ये जो हमारे पास फॉर्मूला है ये बहुत यूजफुल है if the mean is not asked in the question. Even if the mean is asked, you can use the assume mean method to find mean, and then you can use this formula which is step deviation formula use करके आप निकाल सकते हो अपना standard deviation and variance. वेरिएंस होगा तो वेरिएंस सिर्फ इसका स्क्वायर है तो ऑब्वियसली h स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, इधर से रूट हट जाएगा. सो दैट विल बी द फॉर्मूला फॉर वेरिएंस. So with this we have completed our statistics chapter. What all we have done here is we have started with measure of dispersion, we started with range, then we have seen mean deviation about mean and median, and lastly we have done variance and standard deviation, where in variance and standard deviation you have seen 2-3 formulas. So in that, the first formula is that you will just subtract the mean from the observation and you'll take its square and then you will find the mean of that data. So that is the basic formula for variance, and from that we have derived the formula that we are going to use. So the step deviation formula is followed using the formula given by the original variance.